welcome back to another super cool, super amazing and awesome session that we are going to have today. Yes, my dear children, oh my God, first of all, बहुत 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 शुक्रिया और बहुत प्यार. The kind of comments that you leave behind, the kind of compliments you give, oh my dear children, I have no words. We at Vedantu are absolutely, thrilled to have the kind of response, to have the kind of love that each one of you is showering upon us. Trust me, we are working so hard to make your dreams come true, to make sure that you reach the pinnacle of success. And every single time you leave behind a comment, you leave behind a compliment, you make some hearts and you send us. I can't even begin to imagine the kind of love, the kind of adulation, the kind of, gratitude, immense gratitude that each one of us at Vedantu feels. हम इतनी कोशिश कर रहे हैं हर गांव तक पहुंचने की. We are making sure that हम जिस तरह से इस देश में नॉलेज बांटी जाती है, जिस तरह से इस देश में पढ़ाई कराई जाती है, हम उसको टोटली चेंज करें. जब आप में से कोई भी हम लोगों को मैसेज करता है कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, हम दूर नहीं जा सकते, और आप जो वीडियो बना रहे हो उससे हमें इतना फायदा हो रहा है, आप मान नहीं सकते हमें कितना अच्छा लगता है. क्योंकि हर बच्चा ही वेदांतु की वेदांतु का फाउंडेशन है. हर एक बच्चा हमारे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पिलर है. हम सब मिलकर ही तो इस देश को बदलेंगे, हम सब मिलकर ही तो इस देश की एजुकेशन को चेंज करेंगे, हम सब मिलकर ही तो एक नया इतिहास लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों. तो यस, are you in it with me? Are you in it with all of us at Vedantu to make sure that we absolutely change the way knowledge is given, we change the way knowledge is received, we change this nation, we change our mindsets, we with an open mind grasp knowledge. And each one of you, please remember, दिन पर दिन एक लेक्चर, एक बच्चा, एक YouTube recording, we are changing this nation, we are bringing about a revolution. You, me, all of us together are bringing about this revolution in this wonderful country that we call home. और हम लोग मिलकर साथ में एक नया इतिहास लिख रहे हैं बच्चों. Yes, we are rewriting history, one lecture, one recording, one YouTube session at a time. So keep the love coming. Keep all your likes, subscribes, shares, bell icons ringing. Please, we need this support. We need the numbers. We need you to show some support for the awesome work we are doing. क्योंकि यही तो हमारा फ्यूल है, यही तो मुझे पुश करेगा, पंप करेगा और बोलेगा कि हर एक दिन आओ और कुछ नया करो आप सबके लिए. Yes, my dear children. So let's embark on this amazing journey one more time, one session at a time. Let's rewrite history. Let's change this amazing nation that we call home. Yes, together let's expand this beautiful Vedantu family. Okay, now coming to some questions that you all keep asking me again and again. Question number 1, आपको पूरा schedule दिया जाएगा. Soon, very soon you will receive the entire schedule. Zoology का schedule share हो चुका है. Yes, on YouTube for the NEET sessions that we are having, the entire timetable, the entire schedule will be made available to you absolutely very soon. Done? Yes, I want you smiling, I want you jumping, I want you cheering, I want you commenting, I want you studying, I want you to open a pen and paper, I want you to make notes, I want you to focus. Second important thing that you keep asking me, it is free. Yes, jump, shout with joy, it is free, absolutely free. बच्चों, हमारा विजन है कि इस देश के किसी कोने में, जियोग्राफिकली किसी कोने में इस देश के, इस दुनिया के कोई बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ना चाहे पर वो पढ़ ना पाए. इस देश के किसी कोने में एक ऐसा बच्चा ना रह जाए जो ये कहे कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पैसा होता, मैं पढ़ना चाहता था पर मैं पढ़ नहीं पाया. We are out there, the entire team is out there to break geographical barriers. Yes, we are going to break geographical barriers. We are going to break monetary barriers, and for that we require your support. अगर मेरी बातें आपके दिल के किसी कोने में जाके कोई तार खींच रही है, अगर मेरी बातें आपके दिल के किसी कोने में जाके कोई घंटी बजा रही है, तो यस,
लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर अस, क्योंकि जब तक हम इस घर के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल है, तब तक हम वो चेंज नहीं ला सकते। एंड उसके लिए हमें आप लोगों की बहुत जरूरत है। यस, सो नंबर 1 शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। नंबर 2 रोज क्लासेस होंगी, रोज आपको पढ़ाया जाएगा, रोज आपके साथ क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, माइक्रो टेस्ट होंगे, मेगा टेस्ट होंगे, रोज आपको मटेरियल दिया जाएगा घर पर बैठकर सॉल्व करने के लिए, आपके मंथली टेस्ट होंगे, आपको रैंक्स दी जाएंगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और प्यारे बच्चों, ये सारा कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, हम आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। All that we want, all that we are looking for is your support, क्योंकि हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर है। हम यहां पर इस देश को, इस देश की पढ़ाई को, हम यहां पर आपके फ्यूचर को बदलने के लिए आए हैं। जो मेरे पास नहीं था, मेरे पास वेदांतु नहीं था, nobody was there to guide us। yes, हमारे पास ऐसे YouTube रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, हम वो सब करना चाहते हैं जो शायद कभी हमारे पास नहीं था, वो सब आपके लिए होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, or the third and the most important thing is, my dear children, or should I keep that as a surprise? Okay, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए सरप्राइज है। मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊं या अगले लेक्चर में बताऊं? ओके, लेट मी थिंक। यस, तो तब तक हमारी एंथम है, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, वेदांतु का टाइम आ गया है, हमारा टाइम आ गया है, और अपना टाइम यस आ चुका है। तो चलिए आज की ऑसम क्लास शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। आई एम डॉक्टर वानी सूद। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ नीट लेक्चर ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 4। आई नो डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ चीजें बची हुई है, डोंट वरी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के भर भर के लेक्चर्स आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से 40% एमसीक्यू आता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 40% एमसीक्यू आता है। यस, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से भर भर कर सामान आने वाला है। चलिए, ऑन योर सीट्स, गेट सेट एंड गो। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में 2 हिस्सों में करवाऊंगी, कोशिश करूंगी कि दोनों हिस्से में आपको आज की क्लास में ही करवा दूं। इज दैट क्लियर? पहले मैं करवा रही हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी पूरा फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। इज दैट क्लियर? पूरे का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको आज यही इसी वक्त करवाया जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, कम, लेट्स स्टार्ट दिस ऑसम लेक्चर। यस, द किडनीज, whether they are an excretory organ or a regulatory organ, हमें पता है ये दोनों है, ये excretory भी है और ये osmo रेगुलेटरी भी है। यस, चलिए शुरू करते हैं आज की ऑसम क्लास। यस, और जितने बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम आपका एनर्जी लेवल, घर में खाना खाइए, पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, बाहर का सामान नहीं खाना है। यस, घर का सिंपल अच्छा खाना खाइए, बुरा मत कीजिए, बुरा मत बोलिए, राइट इंटेंशंस रखिए, अच्छी बातें करिए। यस, अपने आप एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। और अगले हाय राम, कितने कम दिन बचे हैं। अगले कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। यस, बेहतरीन आपको उनको बनाना है, पर अगले कुछ दिन आपकी लाइफ के सबसे फोड़ू दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। रात दिन एक कर दीजिए, मेरे से भी ज्यादा एनर्जी में रहिए, तभी हम मिलकर एक रेवोल्यूशन लाएंगे। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी। Full attention on what I'm doing in the class. Yes, make notes, make notes, make notes. Sit with the paper and pen. Whatever I'm telling you, हर क्लास में बच्चों मैं आपको MCQs बताती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ ये लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए, उतनी चीजें लिखिए। आपको पता है मैं असम के एक छोटे से गांव से यहां बैंगलोर आई हूं, वेदांतु के हेड ऑफिस में ये रिकॉर्डिंग्स करने, हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। यू आर द एपिसेंटर ऑफ आवर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? Vedantu is for you, of you, by you. Is that clear, my dear children? So together we will rock it. Together you have to support us. Together we have to support you, and we have to make sure that each one of you goes to a government medical college. है ना?
चलिए लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ईच वन ऑफ यू। कईयों के नाम मुझे याद हो गए, कईयों के नाम मुझे याद नहीं हुए हैं। जब आप कमेंट करते हैं मैं कोशिश करती हूं हर किसी के कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। जिस किसी ने अपनी आशा और अपनी आस्था वेदांतु पर रखी है, हर एक उस बच्चे को हम सक्षम बना सके, हर एक उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको आगे लेकर जा सके, यही हमारी प्रेरणा है। आप सब, each one of you is a source of our encouragement. Each one of you is the one who pushes us, who propels us, who makes me get up every single day and makes me want to do the best for you, my dear children. Yes, मेरे फैमिली मेंबर्स कहने लग गए अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बात नहीं कर रही हो हमसे। Only for one reason, क्योंकि सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक we are all focused, dedicated, working hard for you. Yes, आप लोगों को कभी डरने की जरूरत नहीं है। So many of you message me and tell me, मैम डर लग रहा है, मैम पता नहीं अगले कुछ दिन कैसे जाने वाले। Don't worry, reach out to us. we will leave no stone unturned. हम हर वो काम करेंगे जिससे हम आपको सशक्त कर सके। We will make sure that you realize your dreams. मैं हर क्लास में बोलती हूं, आप उड़ने की कोशिश करिए, उड़िए, यस, पंख फैलाइए। वेदांतु उन पंखों के नीचे की हवा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज की सुपर धासु, सुपर अमेजिंग, सुपर फोड़ू क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ आई वॉन्ट अटेंशन। यस, अगले कुछ 10-15 मिनट में मैं फिर 2 सेकंड के लिए रुकूंगी और आप सबको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी, पर अगले कुछ समय के लिए आप सबकी अटेंशन होनी चाहिए इधर। सो उठाइए पेपर, उठाइए पेन, बना डालिए छोटे नोट्स और बदल दीजिए अपनी जिंदगी की डायरेक्शन। यस, चलिए नाउ okay, I think we've moved on to another slide. Let me change the color of the pen. कौन से कलर से लिखेंगे बताइए? I think blue उस पे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा इतने प्यार से ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। मैं अगली स्लाइड आपको दिखाऊंगी, क्या कैलिक्स, पैपिला, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज इस चीज का फायदा उठाइए। जितनी मेहनत की जा रही है आपको समझाने के लिए, प्लीज उस चीज का फायदा उठाइए। किसके लिए किया जा रहा है ये? सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपको बीच में रखने के लिए। यस, so make sure that you work very hard and you achieve your dreams, and for doing that मेरे प्यारे बच्चों, pay a lot of attention. चलिए, okay, now the main purpose of the kidneys is to separate urea, mineral salts, toxins and their waste products from the blood. इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये humans में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? Humans में होता है। Is that clear? Yes, अब ध्यान से सुनिए बेटा, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अगर मैं यहां वेस्ट मटेरियल लिखूं, ये सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनिए और खूब अटेंशन दीजिए। यस, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है बेटा, वो वेस्ट मटेरियल या तो अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है। जो भी अमोनिया सिक्रीट करेगा उनको हम एमनोटेलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिए, जो भी यूरिया सिक्रीट करेंगे उनको हम एमनोटेलिक कहेंगे। एमनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनिया जो है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक। तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी सेव करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इसको बॉडी में सेव करें, क्योंकि ये बहुत क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। क्या मैं एक ब्लैक कलर का पेन यूज करूं? क्या आपको ज्यादा दिखाई देगा? चलिए, कर दिया मैंने। ये इसको हम सेव करना नहीं चाहते, इसीलिए इसको हम इमीडिएटली क्या करना चाहते हैं बच्चों? इसको हम इमीडिएटली एक्सक्रीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इमीडिएटली एक्सक्रीट। इसीलिए इसको एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। कौन करता है? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्यों करते हैं इसको? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। याद रखिएगा ये वर्ड, बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल्स वो अमोनिया सिक्रीट कर देते हैं। अब आप आ जाइए बच्चों रेप्टाइल्स पे। देखिए ग्रीन कलर व्हाइट पे बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। अब आप आ जाइए रेप्टाइल्स पे। बच्चों, यस मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो कभी भी पानी नहीं पीते। इज दैट क्लियर? वो पानी पीते ही नहीं है। आपने कभी छिपकली को पानी पीते देखा है? सांप को देखा है पानी पीते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वो पानी नहीं पीते, इसीलिए उनको जो भी एक्सक्रीट करना है बेटा, वो मटेरियल होना चाहिए एनहाइड्रस। क्या होना चाहिए बच्चों? एनहाइड्रस। मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी पानी जो है वो
नहीं होना चाहिए। इसीलिए रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है बच्चों? क्रिस्टल्स के फॉर्म में। और वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं बच्चों? एनहाइड्रस। उनमें पानी नहीं होता है। यस एवरीबडी, अब आ जाइए आप थर्ड वेस्ट मटेरियल पे। थर्ड वेस्ट मटेरियल होता है बच्चों यूरिया। यूरिया पानी में एक्सक्रीट होता है। यूरिया की टॉक्सिसिटी जो है बच्चों, पानी में मैंने प्लस लिखा है, मतलब इसको पानी चाहिए। और यूरिया की बच्चों जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू अमोनिया। इसीलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉडी में क्या कर सकते हैं? इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉडी में सेव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसको हमने रख दिया, कहां रख दिया? लार्ज इंटेस्टाइन के पास, रेक्टम के पास मैंने बॉडी में सेव कर दिया। तो ये जो एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन होते हैं बच्चों? मैमल्स। इनको क्या कहेंगे? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वालों को यूरिकोटेलिक, और अमोनिया एक्सक्रीट करने वालों को अमोनोटेलिक। सो वेस्ट मटेरियल टू अमोनिया अमोनोटेलिक, वेस्ट मटेरियल टू यूरिया यूरियोटेलिक, वेस्ट मटेरियल टू यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक। तीनों के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। राइट नाउ किडनीज ऑल्सो डू अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। चलिए मार्क करके पढ़ते हैं। ऑफ कंजर्विंग वाटर। यस, अगर आपने कभी देखा होगा बच्चों, मैं आपको एक बड़ी मजेदार रोचक सी बात बताती हूँ। अगर आपने कभी देखा होगा, भूकंप आ जाता है कई बार, बेचारे कुछ लोग कैसे पत्थर वगैरह गिरते हैं उनके नीचे, दफन हो जाते हैं 3-3, 4-4 दिन के लिए। तो आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल वेयर देयर वाज अ पर्सन हु वाज रेस्क्यूड आफ्टर 9 days एंड 9 days दैट पर्सन सर्वाइव्ड विदाउट वाटर। यस, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने दी। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन यूज्ड टू ड्रिंक हिज ओन यूरिन। सो आपने देखा होगा, whenever the person drinks less water, less urine आता है, and whenever the person drinks more water, more urine आता है. So the kidneys have a very important function of conserving water, conserving salts and electrolytes, sodium, potassium, chlorine कंजर्व करते हैं. एटलीस्ट वन किडनी मस्ट बी फंक्शनल. एक किडनी से भी ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वन किडनी शुड बी फंक्शनल. दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द किडनी लुक्स. दिस इज यूरेटर. और यूरेटर से क्या होता है? यस, लेट्स गो बैक टू द बैक स्लाइड. ओके, यूरेटर में क्या पास होता है? यूरिन पास होता है. यस, तो चलिए अब मैं आपको इन डिटेल किडनी के डायग्राम से फंक्शंस भी बताऊंगी. पहले इसके कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स कर देते हैं. जनरली इनसे बहुत इजी तरह के क्वेश्चंस के आने की चांस है. यस, तो किडनी हमारी कैसे होती है? बीन शेप्ड होती है. यस, ये आपको पता ही है. रेडिश टू ब्राउन ऑर्गन्स होते हैं. दे आर अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट. मुट्ठी की जितनी होती है. दिस इज द साइज ऑफ द किडनीज. यस, देखिए, दे आर अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट. It measures 10 to 12 centimeters long. It is covered by a tough capsule of fibrous connective tissue called the renal capsule. That means अगर ये किडनी है, किडनी के बाहर एक बहुत टफ कैप्सूल होगी. उस टफ कैप्सूल का नाम होता है रीनल कैप्सूल. इट्स मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर्स की. कौन बनी होती है? रीनल कैप्सूल. क्या काम होता है रीनल कैप्सूल का? ऑब्वियसली प्रोटेक्शन. इज दैट क्लियर? इसके बाहर एडिपोज टिश्यू भी होगा. क्या होगा इसके बाहर? फैट. ये फैट लेयर भी होगी. व्हाट इज द फैट लेयर कॉल्ड? एडिपोज टिश्यू. क्या कहलाती है फैट लेयर? बताइए. एडिपोज टिश्यू. इज दैट क्लियर? क्या काम होता है एडिपोज टिश्यू का? प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन. यस, ताकि अगर बाई चांस बच्चा गिर जाए, आदमी गिर जाए, किडनी को चोट लग जाए, सो देयर हैज टू बी शॉक एब्जॉर्प्शन. यस, एक और बार मैं आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताने वाली हूं. आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए. क्लास में आराम से बैठिए, सुनिए. पूरा बॉटनी जूलॉजी आपको करवाया जाएगा. रोज लेक्चर्स होंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा करवाया जाएगा. एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स लेकर हम आ रहे हैं. आराम से बैठिए. पर जो मैं आपको रोज पढ़ा रही हूं ना, उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, और साथ में घर जाके एमसीक्यू सॉल्व करिए. यस,
घर पर बैठकर आराम से एमसीक्यू सॉल्व करिए। इज दैट क्लियर? बट लिसन टू एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। डन? चलिए, एंड डाउट्स पूछते रहिए बच्चों। लाइव चैट में डाउट्स कई बार मिस हो जाते हैं, आप अपने डाउट्स धड़ल्ले से कमेंट सेक्शन में पूछिए, हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। सो अडेयरिंग टू द सर्फेस ऑफ ईच किडनी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईच किडनी के ऊपर फैट है जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। दिस इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द kidneys. Any doubts in this? It's all clear? Yes. Now this is the location of the kidney. The concave side के पास depression है, हमें दिखाई दे रहा है, वो तो बहुत सिंपल है। Yes, ये concave site है, concave site के पास क्या है? Depression, where renal artery और vein enter कर रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, renal artery और vein यहीं से enter कर रही है। So renal artery और vein यहीं से enter करते हैं और यहीं से एग्जिट करते हैं अलोंग विद द यूरेटर। सो ऐसी होती है किडनी, आर्टरी, वेन और यूरेटर। आर्टरी, वेन और यूरेटर यहीं से एंटर और एग्जिट करेंगे। किडनी इज लोकेटेड इन द अपर रियर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट अबव द वेस्ट लाइन। वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर किडनीज होती हैं, इनको रिब केज प्रोटेक्ट करता है। द रीनल कॉर्टेक्स, द रीनल मेडुला एंड द रीनल पेल्विस, ये तीनों समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, ये तीनों के तीनों में आपको ऐसे फर्स्ट क्लास तरीके से समझाने वाली हूं। इज दैट क्लियर? लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव द राइट किडनी। कौन बताएगा? कम ऑन, माय फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द डे क्वेश्चन इज दिस। कौन बताएगा? यस, बिकॉज राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे है लिवर। कौन है? लिवर। इसलिए राइट किडनी थोड़ी सी लो हो जाती है लिवर की वजह से, और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी क्या हो जाती है अप, क्योंकि वहां पे लिवर नहीं है। तो अब आते हैं कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पेल्विस के डिटेल डिस्कशन पे। चलिए, लुक एट दिस ब्यूटिफुल डायग्राम। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल डायग्राम। कुछ मत कीजिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ इस अमेजिंग डायग्राम को निहारिए। यस, ये देखिए आपके अपर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पे किडनी है, रिब केज इसको प्रोटेक्ट कर रही है। किडनी आपके बीन शेप्ड ऑर्गन है, ध्यान से देखिए। यस, किडनी आपका बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये रहा राइट। और देखिए आपकी कॉन्केविटी अंदर की तरफ फेस कर रही है, कॉन्केविटी से आर्टरी निकल रही है, वेन निकल रही है और आपका यूरेटर निकल रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये रही आपकी कॉन्केविटी। यस, इस कॉन्केविटी से ब्लू कलर की निकली वेन, रेड कलर की उसके पीछे पीछे निकल रही है आर्टरी। वेन का नाम है रीनल वेन, आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी, और साथ में निकल गया यूरेटर। ये जो कॉन्केविटी है जहां से आपका ये तो अम्बी बन गई, चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, हम इसको अच्छे से बनाते हैं। ये रहा राइट। तो ये कॉन्केविटी है जहां से आपका यूरेटर निकल रहा है। ये कॉन्केविटी, ये डिप्रेशन वाला एरिया, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। सो रीनल पेल्विस से आपका निकल रहा है, और ये एंगल सा जो है, यस यस, ये देखिए ये एंगल सा, ये जो एंगल बनता है किडनी में, इसको डिप्रेशन को बेसिकली क्या कहते हैं? इस डिप्रेशन को बेसिकली हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। यस, चलिए आगे। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे पर एवरेज, राइट? इसमें से क्वेश्चंस आएंगे पर एवरेज क्वेश्चंस। ये जो दूसरी साइड के हैं, ये है आपके महा इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? कोई सुंदर सा कलर ले लेते हैं पेन का। चलिए, ब्यूटीफुल ब्लू कलर। यस, रिलैक्सिंग ब्लू, काम ब्लू। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत डायरेक्ट धड़ धड़ क्वेश्चन आएंगे इस डायग्राम से। ध्यान से सुनिए। चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाइए, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है, ये एक फाइब्रस कैप्सूल होगी, राइट? फाइब्रस कैप्सूल के साथ फैटी टिश्यू भी होगा, वो बनाया नहीं है, फाइब्रस कैप्सूल होगी। सबसे अगर कभी पूछते आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, आप रीनल कॉर्टेक्स मेडुला मत लिख के आइएगा। ग्लिसन्स कैप्सूल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पिछली क्लास मैंने ली थी। अच्छा, कितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं बच्चों, बायोटेक पे ऑसम वेबिनार बनाए हैं, पूरा बायोटेक, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या अगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, क्या वीएनटीआर, ऑसम वेबिनार। देखो बच्चों, वो वेबिनार्स आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। अगर किसी कारणवश आपको वो वेबिनार्स नहीं मिलते हैं तो प्लीज आप लोग वेदांतु टीम को कांटेक्ट करिए और वो वेबिनार्स देखिए। इज दैट क्लियर? बहुत मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पे जितनी पिछली स्लाइड्स बनी हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं,
प्लीज घर जाइए और उनको देखिए, ध्यान से देखिए। इसके अलावा मैंने लिवर और पैंक्रियास पे एक यूट्यूब सेशन लिया है, प्लीज देखिए। लिवर में कूफर सेल्स होते हैं। लिवर की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है बताइए, लिखिए। यस, लिवर की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ग्लिसन्स कैप्सूल। सिमिलरली कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर आपके किडनी की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होगी बच्चों? फाइब्रस कैप्सूल। क्या होगी? यस, फाइब्रस कैप्सूल। अब देखिए उसके बाद में होगा रीनल का। देखो बेटा, एम को मैं मिडल कह देती हूं। क्या कह देती हूं? मिडल। तो बीच में मिडल में मेडुला होगा, आप इसको M2 कह दीजिए। इज दैट क्लियर? मिडल में कौन होगा? मेडुला। ये मिडल का रीजन है, सारा बीच का रीजन है। देखिए मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, देखिए ये आपका सारे का सारा मिडल का रीजन है। तो मिडल के रीजन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला, राइट। तो हमारा आउटर रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? चलिए पेन लेते हैं दोबारा। यस, आउटर रीजन हमारा क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। बीच का रीजन कहलाता है मेड्यूला। अब बेटा आप ही मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से। अब देखिए अगर ये और ये है तो देखिए ये तो स्लिप हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये अलग भी हो सकता है, देखिए स्लिप। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो ये क्या अलग होना इजी है? ये अलग होना आसान है या ये अलग होना आसान है? ऑब्वियसली ये आसान नहीं है। देखिए ये एक दूसरे में फिट हो गया है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस, देखो बेटा ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाती हूं। ये कॉर्टेक्स है, तो देखिए ये कॉर्टेक्स अंदर आया ऐसे, ये कॉर्टेक्स डिप कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। देख रहे हैं? आपको दिख रहा है? कॉर्टेक्स डिप कर रहा है। कॉर्टेक्स कहां डिप कर रहा है? क्या कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर डिप कर रहा है? क्या कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर? यस। सो दीज आर कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स ऑफ बर्टीनी। पिरामिड्स कह रही हूं मैं, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। यस, पिरामिड्स, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज अ रीनल कॉलम? देखिए एरो भी लगा है, मैं एरो आपको ब्लू कलर से दिखाती हूं। ये देखिए, यस ये देखिए रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो क्या होते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी? एमसीक्यू में आता है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी इज कॉर्टेक्स। It is basically cortex and this cortex is extending Bertini because Bertini ने इसको डिस्कवर किया था। Yes, it is extending into the मिडल रीजन। मिडल रीजन जिसमें ये एक्सटेंड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। इट्स एक्सटेंडिंग इनटू द मेड्यूला। ये रहे आपके रीनल पिरामिड्स, राइट। ये देखिए ये है आपके रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स आपके वो रीजन होते हैं जो एक्टिवली फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल में कराऊंगी क्यों एक्टिवली फिल्ट्रेशन में काम कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इन रीजन्स में है हमारे नेफ्रॉन। क्या है? हमारे नेफ्रॉन। तो ये वो रीजन है जिनमें मैक्सिमम नेफ्रॉन्स हैं, इसीलिए वो मैक्सिमम क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग मैक्सिमम, करेक्ट, they are doing maximum filtration. So cortex बाहर का पार्ट है, cortex is extending into the medulla. cortex जहां medulla में extend होता है that is the renal column of Bertini. medulla अंदर का पार्ट है, मैंने आपको M2 बताया था, M middle और M medulla के लिए। is that clear? ये है आपके renal pyramids and if you ध्यान से look at the renal pyramids, इनको मैं डिटेल में भी बड़ा करके दिखाने वाली हूं आपको। इनमें नेफ्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये हमारी मैक्सिमम फिल्ट्रेशन करते हैं। सबसे बाहर की कवरिंग होती है फाइब्रस कैप्सूल। इज दैट क्लियर? अब इसी को ब्रेक डाउन करके हम और डिटेल में पढ़ते हैं। रीनल पैपिला वो रीजन है जहां पे फिल्ट्रेशन की जो ट्यूब है वो आगे जा रही है, फिल्ट्रेशन फिल्टर होकर आगे जा रहा है। तो ये जो बेस है जहां फिल्ट्रेशन का फ्लूइड इकट्ठा होकर, यूरिन इकट्ठा होकर आगे जा रहा है, वो है आपका बेस ऑफ द रीनल पिरामिड। बेस ऑफ द रीनल पिरामिड जहां फिल्ट्रेशन का फ्लूइड इकट्ठा होकर आगे जा रहा है, वो क्या है? रीनल, एब्सोल्युटली रीनल पैपिला। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये रीनल पैपिला, मैं एक बार सब कुछ इरेज कर रही हूं। यस, अब देखिए ये आपका रीनल पैपिला है, ये आपका, मैं यहां लिख देती हूं, ओके। यस, ये बहुत सेंसिटिव स्क्रीन है। कहां थे हम? ओ यस, यस हम यहां थे।
अब ध्यान से देखिए, मैं एक बार दोबारा पेन यूज करती हूं, चलिए, ओके, आई थिंक दैट्स अ रेड पेन, एब्सोल्युटली फाइन, ध्यान से सुनिए। तो देखिए बच्चों, ये रहा मेरा रीनल बेस, यहां पे फ्लूइड फिल्टर हो रहा है। इस बेस का नाम मैंने आपको क्या दे दिया था? रीनल पैपिला। अब देखिए बच्चे, ये रीनल पैपिला इसके अंदर इकट्ठा कर रहा है फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा कर रहा है ना, बिल्कुल। तो ये जो रीनल पैपिला है, ये फ्लूइड जब अंदर दे रहा है, यहां पर फ्लूइड दे रहा है, वो कौन से एरिया में पहले फ्लूइड दे रहा है? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर, 2-3 माइनर कैलिक्स बनकर बन रहे एक मेजर कैलिक्स। तो अगर मुझे आपको ये दोबारा दिखाना है, ध्यान से सुनिए, यस, ये रहा एक माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स बनकर मिल रहे हैं मेजर कैलिक्स, जो जाएगा आपके यूरेटर से फ्लूइड लेकर। व्हाट इज दैट फ्लूइड? ऑब्वियसली यूरिन, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े। नाउ ये जितनी चीजें मैंने डिस्कस करी है ना, इन पे तोड़ फोड़ क्वेश्चंस आते हैं, धड़ धड़ धड़। फिजियोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी में बेटा सिर्फ काउंटर करंट पे क्वेश्चंस आएंगे। एक्सक्रीटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कितनी बार पहले बता चुकी हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब 40% क्वेश्चन आएंगे। देखिए बच्चों, ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, शुड आई टेल यू दैट थर्ड थिंग? बताऊं या ना बताऊं? बोलिए। यस, बिग सब, बताओ या ना बताओ? बोलिए। यस, वी आर कमिंग अप विद अ डिजीज सीरीज, वी आर कमिंग अप विद ऑर्गन सीरीज। फिजियोलॉजी को मतलब 40% तो हम लेकर ही रहेंगे डायरेक्ट। बायो और केमिस्ट्री फोड़ दो, फिजिक्स अच्छा कर दो, कौन रोक सकता है तुम्हें सीट लेने से? बताओ। यस, तो बेटा ऑर्गन्स पे धड़ धड़ क्वेश्चंस आते हैं, फिजियोलॉजी पे धड़ क्वेश्चंस आते हैं, डिजीजेस पे तबाह क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यही करवाए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वी आर कमिंग अप विद दिस सुपर कूल, सुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स वेरी सून, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वॉच एवरी सेशन ऑफ आवर्स। डन? दैट्स अ डील? गिव मी अ हाई फाइव। दैट्स अ डील? परफेक्ट, परफेक्ट। यस, यो एवरीबॉडी गिव मी अ हाई फाइव अगेन। परफेक्ट। चलिए आइए, ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या कह रही थी आपको? मैं ये कह रही थी, मैं गोल गोल क्यों घूम रही हूं? यस, तो मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो फिजियोलॉजी पे सिर्फ काउंटर करंट पे क्वेश्चंस आएंगे, और कोई क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा। काउंटर करंट ही ये फिजियोलॉजी है, पर इसकी जो मतलब एनाटॉमिकल फीचर है ना, कि क्या है क्या नहीं है, किडनी में कौन सा स्ट्रक्चर कहां लगा है, क्या नहीं है, उस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत। तो अब मैं अगले 15-20 मिनट में फिजियोलॉजी की मैंने ऑसम स्लाइड्स बनाई और 30-40 स्लाइड्स कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब करके रहेंगे। यस, पर अगले 15-20 मिनट मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगी, फिर स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग पे आऊंगी। इज दैट क्लियर? तो पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी और फिर मैं उसका डिटेल्ड आपको वर्किंग समझाऊंगी। डन? सो पहले मैं आ रही हूं उसके स्ट्रक्चर पे और फिर मैं आऊंगी उसकी डिटेल्ड फंक्शनिंग पे। डन? हाई फाइव। चलिए, वैसे हम आज से हम अपना एक नया तकिया कलाम शुरू कर सकते हैं ना, एक हाई फाइव। आप जैसे क्लास में आ रहे हो, मैम हाई फाइव, एंड देन वी कैन स्टार्ट स्टडिंग। यस, सो आज से आई डोंट वांट एनीबॉडी डिप्रेस्ड। मुझे इतनी मेल आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, बेटा आपको क्या कमी है फैसिलिटीज की? यस, आप एक बार वेदांतु पे के टच में आ गए ना, वेदांतु के कॉन्टैक्ट में आ गए, अब बस रिलैक्स होकर काम करना है। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। सो वी कम टू द रीनल आर्टरीज। ये देखो, ये आपको पता है आर्टरी जो है हमारी हमेशा रेड कलर की है और वेन जो है हमेशा ब्लू कलर की है। तो आपको पता ही है, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी फ्रॉम द हार्ट, बट वो कौन सा ब्लड होता है बेटा? इसमें थोड़ा बहुत हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, और कुछ नहीं, वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाएगा, तो हार्ट से एओर्टा से टू द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज आर्टरी का ब्लड है, बट इसमें खूब सारा वेस्ट भी है, ऑक्सीजन के साथ साथ वेस्ट भी है। यस, रीनल वेन्स क्या लेके जाएंगे? फिल्टर्ड ब्लड। सो रीनल वेन में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बट वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएंगे? खत्म। देयर विल बी नो वेस्ट मटेरियल, राइट? ये कहां लेके जाएगी? वीना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? वीना केवा, जो कहां जाता है? राइट ऑरिकल। यस, ऑल्सो दैट रिमाइंड्स मी, आई होप यू ऑल सीन द ब्लड स्लाइड्स। यस, फिजियोलॉजी के बहुत लेक्चर्स आ रहे हैं, सो डोंट थिंक मैम ने आधी चीजें छोड़ दी है, फिजियोलॉजी के धड़ धड़ लेक्चर आ रहे हैं। यस, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो अब हम कहां चलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये क्या है? कौन मुझे बताएगा? माय फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द डे क्वेश्चन। कम ऑन दिलीप गायकवाड़, कम ऑन मुदासिर, खुशी, बिंदु बोलिए। यस, आकाश बताइए। चलिए, यस,
सो दिस इज योर एडिपोज टिश्यू। ये क्या है बच्चों आपका? ये है एडिपोज टिश्यू। इसके नीचे क्या होता है? रीनल कैप्सूल, ऊपर की तरफ भी लगी होती है और नीचे की तरफ भी लगी होती है। आउटर मेम्ब्रेन विच इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द किडनीज अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड अगेंस्ट ट्रॉमा। उसके बाहर का सबसे बाहर का रीजन क्या है? कॉर्टेक्स। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे उन नेफ्रॉन्स का नाम होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, राइट? जो नेफ्रॉन मेड्यूला के पास पाए जाएंगे, जक्स्टा, जक्स्टा का मतलब पास पास, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, जक्स्टा, यस, पास पास। तो जो नेफ्रॉन मेड्यूला के पास पाया जाएगा उसका नाम होगा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सो सिंपल, राइट? कॉर्टेक्स का नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेड्यूला का नेफ्रॉन जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। आपको मैं डिटेल में कराऊंगी, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहले आ जाइए कॉर्टेक्स पे। ये किडनी की आउटर लेयर होती है, इसमें दाने दाने होते हैं, ग्रैन्युलेटेड होती है, यस। ये देखिए दाने दाने ऑफ द किडनी दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू। 85% हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स है। एक नेफ्रॉन मेड्यूला के पास, जो नेफ्रॉन मेड्यूला के पास मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज 85%, यस। देयर मैक्सिमम नेफ्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट। हाउ सिंपल इज दिस? यस, चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो अब ये डायग्राम आपको कितना क्लियर नजर आ रहा होगा। अब आपको ये नजर आ रहा है रीनल कॉलम्स ऑफ बॉटनी। चलिए बताइए, मैं ब्लैक पेन यूज करती हूँ। ये देखिए, देखिए कॉर्टेक्स इज गोइंग डिपिंग इनसाइड, कॉर्टेक्स इज डिपिंग इनसाइड द मेड्यूला। कॉर्टेक्स, ये क्यों? ताकि कॉर्टेक्स फ्लिप ना हो जाए, कॉर्टेक्स अलग ना हो जाए। ऐसा ना मेड्यूला अलग हो जाए किडनी का, कॉर्टेक्स अलग हो जाए। सो ये इस तरह का जक्स्टा पोजिशन है, इस तरह से मेल खा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, सो रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स हमने कर लिया है, रीनल कैप्सूल हमने कर लिया, रीनल कॉर्टेक्स हमने कर लिया। अब आ जाइए आप नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। यस, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। नेफ्रॉन पे मैंने क्या लिखा हुआ है? नेफ्रॉन पे 1 2 3 and 4. This 1 2 3 and 4, my dearest children, is nothing but the phases of filtration. सबसे पहले यह है Bowman's capsule, yes. यहां पे क्या होगा? ग्लोमेरुलस में क्या होगा? फिल्टरेशन, yes. फिल्टरेशन हमेशा ज्यादा हो जाता है, yes. कई बार क्या होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, फिर हमारे मन में आता है अरे नहीं वो तो मुझे चाहिए था, तो हम उसको वापस ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन, यस। रीएब्जॉर्ब करेगा जो वेस्ट उसने दे दिया। अब मैं आपको फटाफट 2 सेकंड में कहानी सुनाती हूँ। आई एम श्योर आप सब कभी छोटे थे, जब आप छोटे थे तो आपका कोई फेवरेट टॉय या आपका कोई फेवरेट कपड़ा आपको वो फिट नहीं आता, आप उस खिलौने से खेलते भी नहीं है, पर मम्मी ने उठा के वो छोटे भाई बहन को दे दिया, या छोटे किसी दूर कजन को दे दिया, या किसी और को दे दिया। तो जैसे ही मम्मी ने वो दिया किसी और को, आपका फेवरेट कपड़ा या आपका फेवरेट खिलौना, बोलिए यस और नो ऑन माई स्क्रीन, उसी मोमेंट आप में छूल मच गई, आपको वो वापस चाहिए। आप मम्मी से लड़ोगे, आप झगड़ा करोगे, आप बोलोगे नहीं मेरा सामान कैसे दिया, मुझे वापस चाहिए। जब तक वो पड़ा था घर में हमें उसकी कोई कदर नहीं थी, पर जैसे ही वो हमने किसी और को दे दिया, मतलब हमें वो वापस हर कीमत पे चाहिए। यस और नो एवरीबडी? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं? मैं यही कहना चाह रही हूं कि पहले फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन एक्स्ट्रा मटेरियल का भी हो जाता है, वेस्ट मटेरियल का भी, एक्स्ट्रा सामान को भी हम फिल्टर कर देते हैं कि भैया दो, निकालो इसको। पर जैसे ही वो फिल्टर होता है हमें कहता है हे ईश्वर अब मुझे वो, यस, उसको हम क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? यस। और थर्ड पॉइंट क्या होता है? सिक्रीशन। फिर हम देखते हैं कि अच्छा कौन सी चीज देने वाली है, वो हम फाइनली निकाल देते हैं। इज दैट क्लियर? और फोर्थ होता है उसको हम फाइनली बॉडी से ही निकाल देते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये चारों पॉइंट्स इन डिटेल में आपको फिजियोलॉजी में कराऊंगी, उसके लिए आपको सुख शांति और संयम से बैठना है। इज दैट क्लियर? ध्यान से बैठिए, आराम से बैठिए, sit comfortably. All these 4 points will be done with you really soon in the physiology part, which is coming after a few slides. Now I'm going to be telling you in detail about the structure of the kidneys. Is that fine, my dear children? Are you enjoying the class? Yes, I tried to make it very interactive and interesting for you. Are you understanding? Are you enjoying the class? Yes. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. So the nephron is the most basic microscopic structure of the kidneys. It is the structural and the functional unit of the kidney. Yes, it is what? It is the structural and the
functional unit of the kidney. Inside each kidney there are about 1 million nephrons, physiological unit of the kidney used for filtration of blood and reabsorption and secretion of material. So why structural and functional unit of the kidney, कुछ secrete करना है, कुछ reabsorb करना है. Also my favorite student of the day question on your screen now. Which is the hormone which is made by the kidneys for RBC production? RBC production के लिए kidneys कौन सा hormone बनाती हैं? Yes, oh wow, the hormone is made is erythropoietin. कौन सा hormone है? erythropoietin. क्या नाम है हार्मोन का? इरिथ्रोपोइटिन. चलिए अब मैं आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम ढंग से समझाने वाली हूं, ध्यान से सुनिए. आई थिंक आई विल यूज अ ग्रीन पेन, है ना? यस बच्चों, शुड वी यूज अ ग्रीन पेन? चलिए अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये क्या है आपका? ये है आपका फिल्ट्रेशन यूनिट. नेफ्रॉन ऐसा ही दिखता है. ये आपको दिख रहा है, दिस इज, देखिए ग्रीन पेन से, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. क्या है ये? कैन आई राइट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज? इट्स अ नेटवर्क. और ये लाल रंग की है कैपिलरी, तो मैं इसको एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कह देती हूं. ठीक है बच्चों, कोई मुझे इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी का नाम बता सकता है? यस यस, इट्स कॉल्ड इज ग्लोमेरुलस. क्या कहलाता है ये? ग्लोमेरुलस. अब आप ग्लोमेरुलस को ध्यान से देखिए. ये एफरेंट है जो आर्टरी आ रही है, और ये इफरेंट है जो आर्टरी जा रही है. एफरेंट का डायामीटर होता है ज्यादा और इफरेंट का डायामीटर होता है कम. तो मतलब एफरेंट हो गया मोटू और इफरेंट हो गया पतलू. मोटू पतलू. यस, एक कार्टून भी आता है, कोई मोटू पतलू देखा है आप लोगों ने? यस, इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहां पे उसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि ज्यादा खून आ रहा है और कम खून जा रहा है. तो ज्यादा खून आने की वजह से और कम खून जाने की वजह से यहां प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल और बाउमैन्स कैप्सूल. यहां पे हो गई आपकी फिल्ट्रेशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से. अब ये देखिए, अब मैं इसको मिटा रही हूं. यस, और अब मैं यूज करती हूं आई थिंक अ ब्लू कलर्ड पेन. यस, तो देखिए जो इफरेंट आई, यही इफरेंट जो निकल कर आई, यही इफरेंट इस ट्यूब के ऊपर घूम जाती है. ऐसे आगे एक बहुत सुंदर डायग्राम है. यही इफरेंट इस ट्यूब के ऊपर घूम जाती है. जब ये इफरेंट इस ट्यूब के ऊपर घूम रही है, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा. क्या कहते हैं? वासा रेक्टा. ये वासा रेक्टा का क्या काम है? ये इसमें जो वेस्ट मटेरियल को मैंने एक्सक्रीट कर दिया है, जो वेस्ट मटेरियल मैंने यहां निकाल दिया, जो मुझे वापस चाहिए, ये वासा रेक्टा क्या कर लेगी उसको? वासा रेक्टा क्या कर रही है उसको? वासा रेक्टा उसको कर लेगी रीएब्सॉर्ब. क्या कर लेगी? रीएब्सॉर्ब. सारे का सारा सामान जो वेस्ट मटेरियल निकला था उसको क्या कर लिया? रीएब्सॉर्ब. तो ये है आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरी मतलब अराउंड, ट्यूब. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही क्या बन रही है? आपकी वासा रेक्टा, जो क्या कर रही है? आपका रीएब्सॉर्प्शन सॉल्यूट्स और वाटर. इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. बेटा प्रॉक्सिमल का मतलब है पास, डिस्टल का मतलब है दूर. राइट तो बेटा जब मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बनाती हूं, मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम ग्रीन पेन से बना के दिखाती हूं. तो देखिए ये ट्यूब ऐसे निकलकर ऐसे जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट है. तो क्या ये ट्यूब पास है? इज इट क्लोज टू द ग्लोमेरुलस? और क्या ये ट्यूब दूर है? इज इट अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस? बस इतना बताइए मुझे, यस और नो. हिंदी इंग्लिश सारे बच्चे बताइए. यस, तो ये क्योंकि ग्लोमेरुलस के पास है, इसका नाम दे दिया मैंने प्रॉक्सिमल, क्योंकि प्रॉक्सिमल का मतलब ही है पास. और क्योंकि ये वाला ट्यूब दूर है, इसका नाम मैंने दे दिया डिस्टल. तो और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब पता क्या होता है? घूमना. तो ट्यूब सीधी नहीं होती, ट्यूब कभी भी, ट्यूब ऐसे होती है, घुमक्कड़. इज दैट क्लियर? तो उसको हम कह देते हैं कॉन्वोल्यूटेड. और छोटी ट्यूब है तो ट्यूब्यूल. उसके बाद में देखती हूं, ये देखिए ब्लड और एरो, देखिए मैं सब कुछ मिटा रही हूं. देखिए अब मैं दोबारा से बना रही हूं. अब वो तीसरे वाले एरो पे आप ध्यान दीजिए, ब्लू कलर वाले पे. ये देखिए ये कैपिलरी से कुछ सामान इसके अंदर जा रहा है. फिर मैं रियलाइज करती हूं कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा यूरिया मेरे पास हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल मेरे पास हो जो मुझे निकालना है. उसको हम कहते हैं सिक्रीशन. एडिशनल वेस्ट में डाल देती हूं एक्सक्रीट करने के लिए, और फाइनली मैं उसको बॉडी से निकाल देती हूं, which is called as excretion. Is that clear? Are you all understanding? So let's do each one of the parts and each one of the functions in detail. आ जाइए आप रीनल मेड्यूला पे. क्या है रीनल मेड्यूला? रीनल मेड्यूला तो आपके बीच का पार्ट है. कौन सा पार्ट है? बाहर वाला कॉर्टेक्स. और ये वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला. और ये वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स.
तो रीनल मेड्यूला इज द इनर लेयर, इसमें रेडियली स्ट्राइटेड मसल्स लगी हैं, दैट मींस ऐसे मसल्स ऐसे लगी हैं किडनी, तो अगर मैं किडनी बनाऊंगी तो मसल्स ऐसे लगी हैं, रेडियल स्ट्राइशंस। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड योर रीनल मेड्यूला। कंटेन्स रीनल पिरामिड्स, आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, ये डायरेक्ट एमसीक्यू है। ये समान किडनी में कॉर्टेक्स में होता है या मेडुला में होता है, इट्स अ डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। So contains renal pyramids, contains papillae, contains renal columns, renal calyces, minor major calyx मैं आपको बता चुकी हूं, pelvis part of the nephron, not located in the cortex। हो सकता है, अब मेरे को डायग्राम बनाने दीजिए, तो हो सकता है कि कॉर्टेक्स में आपका बोमन्स कैप्सूल है, तो ये आपकी लूप ऑफ हेनले कहां आ रहा है, आपका पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हेनले कहां आ रहा है, मेड्यूला में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं डिफरेंस करूं, ये बाहर वाला पार्ट में मान लेती हूं कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में आपका बोमन्स कैप्सूल वगैरह आ रहा है, और इनर पार्ट क्या है, मेड्यूला में आपका वो वाला पार्ट आ रहा है। इट इज अ साइट फॉर सॉल्ट वाटर एंड यूरिया एब्जॉर्प्शन। इट्स अ डायरेक्ट ब्लू कलर एमसीक्यू। सॉल्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, सॉल्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपके रीनल मेड्यूला में होता है। चलिए आगे बढ़े। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्या निकल रहे हैं, आपके यूरेटर निकल रहे हैं पेल्विस से, यस, रीनल पेल्विस से, और कहां जा रहे हैं यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम होती है, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में मैं करवा चुकी हूं, यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम बताइए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बच्चों ये मेरा आपसे वादा है, दिस इज अ वेदांतु प्रॉमिस, सारी चीजें जो एग्जाम में आएंगी वो यहां करवाई गई होंगी, बट आपको हर चीज ध्यान से सुननी है, देखनी है, लिखनी है और याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े। लेट्स कम टू द रीनल पिरामिड्स, राइट। ये देखिए रीनल पिरामिड्स, अगर मुझे आपको, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ऐसा बाहर से दिखता है, ये रहा आपका इंटीरियर व्यू, ये रहे रीनल पिरामिड्स। सो रीनल पिरामिड्स अ ट्रायंगुलर शेप्ड यूनिट इन द मेड्यूला। दिस इज अ डायरेक्ट एमसीक्यू, direct MCQ. They house the loop of Henle and the collecting duct of the nephron. So loop of Henle and collecting duct कहां है, loop of Henle and collecting duct कहां है, loop of Henle और collecting duct कहां है, renal pyramid में, और renal pyramid कहां है, medulla में। डायरेक्ट MCQ, एक एक लाइन लिखिए, याद करिए। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं आज करवाने वाली हूं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन। इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ यूरिन। सो रीनल पिरामिड हैज द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। रीनल कॉलम्स, एरिया बिटवीन द पिरामिड्स लोकेटेड इन द मेडुला। ये देखिए, कौन सा कलर बताइए, चलिए ग्रीन, ओके। ये देखिए, देखिए क्या ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो मेडुला में डिप हो गया है, क्या ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो मेडुला में डिप हो गया है, क्या ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो मेडुला में डिप हो गया है, हाई फाई, एब्सोल्युटली। इट्स द एरिया बिटवीन द पिरामिड्स, इट्स लोकेटेड इन द मेडुला। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, इट्स द स्पेस फॉर द ब्लड वेसल्स फॉर द आर्टरी एंड द वेन टू go, absolutely। चलिए, renal pelvis, it is the cavity which lies in the center of the kidney and which extends into the ureter. This, my dear children, is the pelvis. It's going to extend into the ureter. Such a lovely diagram. Minor calyx, major calyx is emptying into the pelvis. Pelvis is a khadda, pelvis is a small cavity, pelvis is the part which is extending into the ureter, is going down. This is the pelvis. यहां से fluid drain हो रहा है, the fluid is draining and coming into the pelvis, and the pelvis is extending into the ureter. It collects urine from all the calyces in the kidney. Major और minor calyce urine किसको देंगे, major और minor calyce urine देंगे आपके pelvis को। Done? चलिए, the ureters, so right and the left ureter tubes that transport urine from the renal pelvis into the bladder. So the ureter is a tube, it's a tube, it's transporting the urine from the pelvis into the bladder. The bladder has transitional epithelium. The urinary bladder is a very hollow, expandable, फैल सकता है, that is why it has transitional epithelium. Muscular organ located in the pelvic girdle. It functions as a temporary reservoir of
urine. Absolutely right, because after that through the urethra it will be expelled outside. That's like my students. How cool is that? Yes, all of you, I want you to smile, I want you to relax, I want you to leave your fears, leave your tensions, leave your stress on Vedantu. We are there. We are there to make sure that each one of you realizes your dreams. Yes? चलिए आगे बढ़े. Now, the kidney nephron diagram. Look at how convoluted the tubes are. Uh-oh. Let's move back. Yes? Look at how convoluted the tubes are. Can you see that? Can you see how convoluted the tubes are? Right? Are they straight? No. ये देखिए. Your proximal tube also. Yes? Is this close to the Bowman's capsule? Is this away from the Bowman's capsule? Say yes, say no. Yes. So can I say that this is PCT? Is it clear, everybody? And can I say that this is DCT? Yes, I can. है ना? एक पास एक दूर. I can easily say एक PCT एक DCT है. Is that clear? Brilliant. Yes. चलिए. So see how it is. A part of them. Okay, I need to write here. I think I'll use a green. I'll use a blue, green. I think green. चलिए. See, a part of them here and a part of them in the medulla. How cool is that? Yes. चलिए अब ध्यान से सुनिए. So this, my dear children, is the Bowman's capsule. This is the glomerulus. Glomerulus is a capillary network. Look at the size of the efferent, much thicker. Look at the size of the efferent, much thinner, because of which there is a pressure difference in the glomerulus, जिसकी वजह से हो रहा है filtration. Is that clear? Filtration हुआ और fluid इस येलो कलर की पाइप में आ गया. जो येलो कलर की पाइप ग्लोमेरुलस के पास है, बाउमेंस कैप्सूल के पास, उसका नाम पीसीटी. जो दूर है उसका नाम सिंपल डीसीटी है ना. लॉर्ड, अभी इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं भाई, इतना सिंपल है. इज दैट क्लियर? और ये नहीं निकला आपका इफरेंट. और जैसे ही सामान निकला, जैसे ही मम्मी ने किसी को सामान दिया, मेरा सामान कैसे किसी को दिया, हम भागेंगे और वो सामान बिल्कुल वापस खींचेंगे. एग्जैक्टली. तो ये रहा इफरेंट. मिटाओ सब कुछ, दोबारा दिखाने दो. चलिए फटाफट देखते हैं. तो ये रहा इफरेंट. इफरेंट निकला और धड़ 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 सबके ऊपर घूम रहा है. देखिए इसको क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का मैंने आपको एक और नाम क्या दिया है? वासा रेक्टा. ये क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब और सिक्रीशन. और ये कैपिलरी नेटवर्क जाएगा किसमें मिलेगा? वेन में. तो सामान आ कहां से रहा है? आर्टरी से. ऑक्सीजन से भरा हुआ है पर वेस्ट मटेरियल से लदा हुआ है. सामान जा किससे रहा है? वेन में. ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, पर क्या है? क्लीन है. Is that clear? This is the diagram of the kidney nephron. Let me do each one of them in detail with you in the subsequent few classes. Done? Are you ready to sit for one more hour? Are you ready to sit for one more hour? Can we take it as a marathon session? 1 घंटा बैठोगे मेरे साथ? Yes? Should you want me to do the entire chapter? Let's do this. Let's rock. Let's do this. Yes, my dear students. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes? Yes, तो जैसे मैं बता रही थी, the kidney nephron diagram is over, my dear children. And come, let's go ahead and moving ahead doing the next slide. Now, promise me, you will sit with me for the next 30 minutes, just 30 minutes. You will sit with me for the next 30 minutes and I will make sure this entire chapter becomes a piece of cake for each one of you. Chaliye, 30 minutes, full attention, nobody stops viewing, nobody goes here and there, 100% attention and we completely wrap up this topic. Chaliye, let's do it. Now nephrons, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, are of 2 types. वो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चलिए लिख के देखते हैं. वो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में रहता है, राइट? दिस इज द किडनी. ये किडनी के बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स. वो नेफ्रॉन जो ज्यादातर कॉर्टेक्स में होता है, इट्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन. आई टोल्ड यू इट इज 85% ऑफ द नेफ्रॉन. द लूप ऑफ हेनले डज नॉट एक्सटेंड पास्ट द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड नहीं करती. वो नेफ्रॉन जो मेड्यूला में भी आता है, so that nephron which extends past the cortex into the medulla, which is around 15% of the nephrons, is referred to as the juxta, which is close.
Medulla, which means medulla, close to the medulla, nephron. Is that clear? So we have the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron will have a longer loop of Henle, so that is going to help us in more water reabsorption. Simple. Nephron structures and function. We have the efferent and the efferent arteriole. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Efferent arteriole blood लेकर Bowman's capsule में आएगा. It's going to be thicker. Its diameter is going to be bigger. It's going to create a pressure because of which filtration happens. जो nephron निकल रहा है Bowman's capsule से, right? जो artery निकल रही है Bowman's capsule से, that is called the efferent. उसका diameter पतला होगा. Efferent का diameter मोटा होगा. Efferent निकलकर आपके पीसीटी, डीसीटी और वासा रेक्टा के ऊपर घूम जाएगी. इफरेंट निकलकर पीसीटी, डीसीटी और वासा रेक्टा के ऊपर घूम जाएगी. सो दिस इज नोन एज द वासा रेक्टा. एब्सोल्युटली. इफरेंट निकलकर क्या बन जाएगी? वासा रेक्टा. एफरेंट आएगी ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस से निकला इफरेंट और इफरेंट बन जाएगा वासा रेक्टा. So simple. Done. So that is the efferent and the efferent arterioles. अब आ जाइए. All of this I have told you before. So that is why we will go a little quick because I have explained all of this to you. चलिए glomerulus. Glomerulus is the site of blood filtration. ये वो साइट है जहां पे ब्लड फिल्टर होता है. It operates, right? This is the glomerulus, right? This is the efferent, efferent, glomerulus. efferent निकलकर इसके ऊपर जाएगी. जब वो इसके ऊपर जाएगी हम उसको क्या कहते हैं? हम देख चुके हैं इतनी बार. It will be called the vasa recta. Glomerulus is a non-specific filter. मैंने आपको मम्मी वाला एग्जाम्पल दिया था. Yes, it's a non-specific filter. It will filter everything. It will filter all the things. It removes both useful and non-useful material. The product of the glomerulus is referred to as the filtrate. So dearest children, what is this which is going inside? It's called the filtrate. Bowman's capsule is a sac. Right? So this sac is referred to as the Bowman's capsule. It's a sac that encloses glomerulus. इसके अंदर कौन है? Glomerulus. It transfers filtrate from the glomerulus to the PCT. So glomerulus ये रहा and this is your PCT. So glomerulus और PCT के बीच में what is the connection? That connection is the Bowman's capsule. How simple. Yes, moving ahead my dearest children. Let's come to PCT. What is PCT? PCT is referred to as the proximal convoluted tubule. मैं आपको ये भी समझा चुकी हूँ. What is the meaning of proximal? Proximal का मतलब होता है पास. So it is, yes, let me write down. Proximal का मतलब होता है पास. It's thick, constantly active segment. Active क्यों? क्योंकि ये ATP एनर्जी खर्च कर रहा है. Very important aims and NEET question. It's a direct MCQ. Very important aims and NEET question कि भाई जो proximal convoluted tubule है, इज दैट क्लियर? उसके अंदर कौन सी एपिथीलियम है? कौन सी एपिथीलियम है मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथीलियम है. विच एपिथीलियम? क्यूबॉइडल. ये क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब. इज दैट क्लियर? इट रीएब्सॉर्ब्स. डायरेक्ट एमसीक्यू. जो एक्स्ट्रा सामान निकल गया था वो इसके अंदर क्या होगा? रीएब्सॉर्ब. रीएब्सॉर्ब करेगा कौन? इफरेंट का वासा रेक्टा रीएब्सॉर्ब करेगा. क्या क्या रीएब्सॉर्ब करेगा? डायरेक्ट एमसीक्यू. डायरेक्ट एमसीक्यू. सोडियम रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी, क्लोराइड रीएब्सॉर्ब हो जाएगा और सारे का सारा ग्लूकोज. सिर्फ वो लोग जिनको डायबिटीज है उनके यूरिन में ग्लूकोज निकलता है. ओनली दोज पीपल हु आर डायबिटिक, उनके यूरिन में ग्लूकोज निकलता है. बाकी सारों में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? इट विल गेट, यस, एब्सोल्युटली राइट, reabsorbed. The primary site for the secretion, elimination of drugs, waste and hydrogen ions. यूरिन इज एसिडिक ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना उगे. हमें अपने ब्लड को एसिडिक नहीं करना है. सो वट एवर ड्रग्स, आपको पता होगा डोपिंग होता है, एथलीट्स डू डोपिंग, उनका टेस्ट होता है. सो देयर ब्लड इज चेक्ड एंड देयर यूरिन इज चेक्ड. यस, सो ऑल द ड्रग्स, ऑल योर बाइकार्बोनेट आयंस, ऑल योर हाइड्रोजन आयंस, बेसिकली मोर देन बाइकार्बोनेट आयंस, ऑल योर हाइड्रोजन आयंस, वेयर आर दे एक्सक्रीटेड आउट? हाइड्रोजन तो हम रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि हमें ब्लड को अल्कलाइन बनाना है. सो द हाइड्रोजन आयंस आर रीएक्सक्रीटेड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसके पास क्यूबॉइडल एपिथीलियम है.
राइट. सो हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म कर दिया है. आफ्टर द पीसीटी वी आर कमिंग टू दिस पार्ट. ये देखिए बेस पार्ट, यहां पे यू शेप लूप बन रहा है. कैन यू सी दैट? Can you see this U-shaped loop here, everybody? Yes, let me use a pen and show it to you. Yes, this U-shaped loop is called the loop of Henle. Right? It's a U-shaped tube that consists of a descending. Obviously, this will be the descending loop of Henle, and this will be the ascending loop of Henle. So there is a descending and there is a ascending loop of Henle. It begins in the cortex. ये कहाँ शुरू हो रहा है? ये cortex में शुरू हो जाता है. रिसीविंग फिल्ट्रेट फ्रॉम द पीसीटी, पीसीटी से फिल्ट्रेट रिसीव कर रहा है, एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर एक्सटेंड होता है पूरे का पूरा. आप सबको यस दिखाई दे रहा है. एंड देन रिटर्न्स टू द कॉर्टेक्स, और वापस रिटर्न कहां जा रहा है? वापस कॉर्टेक्स में रिटर्न जा रहा है. और उसके बाद ये कौन से पार्ट को ज्वाइन कर रहा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इट्स प्राइमरी रोल इज टू कॉन्सेंट्रेट द सॉल्ट इन द इंटरस्टिशियम. देखिए ये लूप है, ध्यान से सुनिए. यस, लेट्स इरेज एवरीथिंग ताकि आपकी अटेंशन एक जगह बनी रहे. यस, लेट्स इरेज एवरीथिंग एंड पे अटेंशन. चलिए आइए. तो देखिए ये आपका लूप है. यस, आपको नजर आ रहा है ये आपका लूप है पूरे का पूरा. इज दैट क्लियर? ये जो है ये इंटरस्टिशियम है. मतलब अगर ये पाइप है, अगर ये ट्यूब है, तो ये पाइप के बाहर का पार्ट है. इज दैट क्लियर? अगर ये लूप ऑफ हेनले है, ये पीसीटी में ज्वाइन हो रहा है, ये डीसीटी में ज्वाइन हो रहा है, और ये लूप ऑफ हेनले है, ये पूरा लूप ऑफ हेनले है. तो उसके बाहर का पार्ट क्या कहलाता है? यस, उसके बाहर का पार्ट कहलाता है इंटरस्टिशियम. इज दैट क्लियर? क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियम. तो बच्चों ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है आपको दिखाई दे रही है, ये डिसेंडिंग नीचे जा रही है. इज दैट क्लियर? दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले ये पानी रीएब्सॉर्ब कर रही है. देखिए सारा पानी. इसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? गैप जंक्शंस. मैं आपको करवा चुकी हूं ब्लड वाले वेबिनार में. इसमें गैप जंक्शंस है. देयर इज अ लॉट ऑफ गैप. इन गैप जंक्शन से पानी निकल के बाहर आ रहा है. सो इट्स impermeable to salts but permeable to water. और ये रहा आपका ascending limb of Henle. ascending limb के जंक्शंस कैसे हैं? टाइट जंक्शंस है. कैसे जंक्शंस है? टाइट जंक्शंस. सो टाइट जंक्शंस जो होते हैं इनसे पानी निकल के बाहर नहीं आ सकता. सो ओनली व्हाट मॉलिक्यूल कैन कम? Sodium can come out. Is that clear? That's the loop of Henle. It's a U-shaped tube. Cortex में begin होता है. मैंने कैसे होता है आपको बता दिया. ये concentrate करेगा salt interstitial tissue में. देखिए यहां सारा salt बाहर आ रहा है. Can you see that? Yes, all the salt is coming out here. All the salt is coming out in the interstitium. Yes, is that clear? Moving ahead to the next slide. Yes, everybody. चलिए ध्यान से देखिए. Descending limb of Henle. लूप ऑफ हेनले को मैं इन डिटेल डिस्कस कर रही हूं. आई विल फर्स्ट डिस्कस द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले विद यू. यस, सो व्हाट विल आई डिस्कस फर्स्ट? आई विल डिस्कस द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, इट्स अ पार्ट ऑफ द काउंटर करंट मल्टीप्लायर. व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर माय डियर चिल्ड्रन? अ ट्यूब इज गोइंग डाउन, अ ट्यूब इज कमिंग अप एंड ब्लड वेसल्स आर गोइंग अराउंड इट. सो एक ट्यूब नीचे, एक ट्यूब ऊपर, और उसके आसपास ब्लड वेसल्स घूमना इज कॉल्ड एज काउंटर current multiplier. It's fully permeable to water and completely impermeable to solutes. Salt particles are not going to go inside and outside. So this has water coming out and the salts do not move. It receives filtrate from PCT. इस बात को प्लीज आप गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. Permeable to water, impermeable to salts, descending limb of Henle. PCT से अलाउ आता है, राइट, और ये आगे सॉल्टी मटेरियल पास कर देगा क्योंकि वाटर को रीएब्सॉर्ब कर देगा और सॉल्ट आगे चले जाएंगे. यस, इट विल गिव आउट द वाटर, इट विल टेक द सॉल्ट. बाहर क्या छोड़ रहा है? वाटर. एंड व्हाट इज इट पासिंग अहेड? सॉल्ट्स. दैट्स अबाउट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ loop of Henle. Let's come to the ascending limb of loop of Henle. Yes, so what are we coming to now? Ascending limb of the loop of Henle, again a part of the counter current mechanism as we know it, a part of the counter current multiplier. It is impermeable to water. इससे पानी बाहर नहीं आता है. उल्टा क्या बाहर आ रहा है? What is going to come out from here? What is going to come out in the interstitium? What you see, this pink color part is inner medulla. It is interstitium. What is going to come out is salt. Absolutely right.
Yes, so it gives out salt. अब बेटा बहुत एक आपको यहां सिंपल सी बात समझनी है. देखिए, अगर मैंने आपको हमेशा से बोला है, इस बात को बहुत माहीन बात है, ध्यान से सुनिए. अगर सॉल्ट होगा, यस लिख देती हूं मैं इसको आपको. तो अगर सॉल्ट होगा, सॉल्ट के पीछे पीछे कौन आएगा? सॉल्ट क्या होता है मैं आपको हमेशा बताती हूं. सॉल्ट इज द सॉल्यूट, इजंट इट? यस, सॉल्ट इज द सॉल्यूट. तो अगर सॉल्ट होगा, उसके पीछे पीछे कौन आएगा? पानी, वाटर विल कम. तो बच्चों, अगर मैंने इसमें से सॉल्ट यहां निकाल दिया, इफ आई हैव टेकन आउट द सॉल्ट, लुक एट द रेड एरोज, प्लीज इमेजिन दैट द रेड एरोज आर सॉल्ट. तो अगर मैंने सॉल्ट निकाल दिया, ऑटोमेटिकली यहां से क्या निकलेगा? बिकॉज सॉल्ट इज इन द इंटरस्टिशियम. सॉल्ट बाहर आ गया, सॉल्ट इंटरस्टिशियम में आ गया, तो उसके पीछे पीछे यहां कौन निकलेगा? वाटर. इज दैट क्लियर? Yes, everybody? Absolutely right. Let's come to the DCT, the distal convoluted tubule, which is starting after the descending limb. Is that clear? Variably active portion of the nephron receives dilute fluid from the ascending limb. Dilute fluid क्यों receive कर रहा है ये? क्योंकि लूप ऑफ हेनले ने सॉल्ट और वाटर काउंटर करंट मल्टीप्लायर से निकाल दिया, so it's going to receive a dilute fluid. Is that clear? That's the, देखिए कनेक्टिंग ट्यूब्यूल का ऐसा सेल होता है एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स ऐसे होते हैं. यू सी द डिफरेंस इन द न्यूक्लियाई, राइट? सो इट इज एक्टिव, राइट? दैट्स द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज देयर. इसका न्यूक्लियाई मोटा, इसका फ्लैटेंड है. क्यों? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कैन यू सी दिस? प्लीज रिमेंबर, one of the most active parts of the kidney is the DCT. It has a lot of mitochondria. It is employed with formation of urine. Absolutely right. चलिए आगे चलते. Collecting duct. Is that clear? So collecting duct, ये देखिए जो black color से बना है, all that you can see with the black color is your collecting duct. It's again a variably active portion of the nephron. DCT से सामान लेता है. It is the last. This is very important. एक बार DCT के आगे fluid चला जाए, it forms the urine. एक बार, I repeat this, एक बार DCT के आगे fluid चला जाए, urine formation खत्म हो गया, fluid DCT के आगे चला गया. Now there can be no change in the urine. So the last pit, the last stop where you can save water, you can conserve water for the body, where you can do something, is your, absolutely right, is your DCT. Chaliye, I hope you're enjoying the session, my dear children. Another 20 minutes, you have to be with me, another 20 minutes. Yes, I will do this entire chapter with you. Chaliye, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो इसका लास्ट पोर्शन है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, जो इफरेंट निकला था, क्या निकला था? इफरेंट. वो इफरेंट क्या बन गया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दैट इज गोइंग अराउंड द parts of the nephron. What is it going to do? It's going to absorb as much as it can. It is going to, this capillary network will transport the reabsorbed material from the PCT and DCT into veins. आपको पता है ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको? तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किसको सामान दे रहा है? वेन को. That means इसने जितना सामान रीएब्सॉर्ब किया है, इसने पीसीटी से और डीसीटी से जितना रीएब्सॉर्ब किया है, किसको दे दिया? वेन. वेन किसको देगी? वीना केवा. वीना केवा से कहां जाएगा? हार्ट पे. सिंपल, राइट? सो इट हेल्प्स कंजर्व द कंजर्वेशन प्रोसेस. रीएब्सॉर्प्शन को कहां डाल रहा है? रीएब्सॉर्प्शन को वापस सर्कुलेशन में डाल रहा है. सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम. यहां देखिए, look at that beautiful diagram. Let me go to the opposite side and explain that beautiful diagram to you. Yes, तो देखिए नेफ्रॉन से जो निकला पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना, तो ये देखिए ये आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किसको सामान दे रहा है? वेन्स को. और वेन से वापस कहां जा रहा है? आपकी सर्कुलेशन में. सो जो भी रीएब्सॉर्ब हुआ है वो वापस सर्कुलेशन में एंटर होना चाहिए, which happens because of the peritubular capillary network. So now another 20 minutes and we are going to finish off the physiology. Is that clear? Yes, another 20 minutes. We have done with the entire anatomy, the structure. Another 15-20 minutes. Let's be done with the physiology of the kidneys. Let's come to the kidney nephron. These are the functions. These 9 parts कहीं ऐसे mention नहीं है. Each one of them I am going to do with each one of you in 100% detail, like 500% detail. Is that clear? आज की क्लास
क्लास में मैंने आपको बहुत बातें बोली हैं। यस, शुरू की क्लास में हर बात पे गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कम समय रह गया है। आज की मेहनत कल को आपको आपके फेवरेट कॉलेज में जाकर बिठा सकती है। यस, चलिए शुरू करते हैं। किडनी नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। ये वो यूनिट्स है किडनी की जो काम करती हैं। क्या क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यस, मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड प्रेशर। मैं इसको डिटेल में करवाने वाली हूं। आपको पहले ही पता है, आपने अगर मेरी क्लासेस फॉलो की होंगी तो ये फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम किससे बनती है? वॉल्यूम किससे बनती है? वाटर से। तो किडनीज क्या करती हैं अगर जरूरत पड़े? रीएब्सॉर्ब वाटर करेंगी, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उल्टा काम, सिंपल, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो वाटर को क्या कर देंगी? एक्सक्रीट, वॉल्यूम कम और प्रेशर कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रही है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीनल ब्लड प्रेशर, यूरिन फॉर्म कर रही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मैं आपको करवा चुकी हूं और थोड़ा डिटेल में करवाऊंगी, जो कि आपकी लूप ऑफ हेनले कर रहा है। H और NaOH बैलेंस करता है। HCO3 माइनस OH और H को बैलेंस करता है। इट बैलेंसेस द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको बैलेंस करके रखता है। मटेरियल्स को हमारी बॉडी में रीएब्सॉर्ब करता है। जिस भी चीज की मुझे जरूरत है उसको मैं रीएब्सॉर्ब कर लेती हूं, जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है उसको सिक्रीट आउट करता है। इसके अलावा मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है जो हमें चाहिए होता है फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, वो कौन सिक्रीट करता है? किडनीज। यस, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल तो करता ही करता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। सो यह देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लाइड दिस इज। FRSE, यस, F stands for filtration, R stands for reabsorption, S is secretion and E is excretion. फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है? ब्लड। तो यहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूं। देखिए कि मैंने क्यों स्लाइड बनाई है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट ऐसा डायग्राम बनाया होगा, यहां ऐसी मार्किंग की होगी और इसमें लिखा कुछ नहीं होगा और आपको बोलता होगा बताइए क्या है। यस, या यहां मार्किंग की होगी ऐसा। दिस इज द 1% जनता क्वेश्चन। यस मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे के सारे 1% जनता में एंटर हो चुके हैं। सो दिस इज द 1% जनता क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या है। चलिए, तो यहां क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? ये ब्लड से कहां पर हो रहा है? आपकी ल्यूमेन में फिल्ट्रेशन हो रहा है। किसकी ल्यूमेन है ये? पीसीटी की ल्यूमेन। वहां पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन। रीएब्सॉर्प्शन, मैंने वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा निकाल दिया, मम्मी ने मेरा बेस्ट सामान किसी बच्चे को दे दिया, मुझे वो वापस लेना है। तो यहां क्या हो रहा है? पीसीटी से क्या हो रहा है? ब्लड वेसल में। ये ब्लड वेसल कौन है? आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इज दैट क्लियर? उसके अंदर क्या हो रहा है? रीएब्सॉर्प्शन दिख रहा है। और बाय चांस ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल है, बाय चांस ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल है, तो वो ब्लड क्या कर रहा है? सिक्रीशन। क्या कर रहा है? एब्सोल्युटली, ब्लड उसको भी सिक्रीट कर रहा है। चलिए, राइट। और ई क्या है? फाइनली एक्सक्रीशन। इधर भी हो रहा है रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इधर क्या हो रहा है? रीएब्सॉर्प्शन। इधर क्या हो रहा है? रीएब्सॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? यहां किसका रीएब्सॉर्प्शन होता है? यहां पे ब्लड में नहीं हो रहा है पर ल्यूमेन में हो रहा है। क्या निकालते हैं हम यहां? सॉल्ट। और यहां क्या निकालते हैं हम बाहर? पानी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन is the filtration of blood. The glomerulus is the site for filtration of blood. What is the second most important thing? The second most important thing is the nephron. यहां पे मैं आपको podocytes कराऊंगी, which is again the 1% जनता question. Very very important. The Bowman's capsule. अब देखिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। यस, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप बस ध्यान से क्लास को सुनिए और कुछ मत करिए। ये है, देखो ये आपका पीसीटी है, ठीक है, ये आपका क्या है? पीसीटी है। ये आपका क्या है? ये पार्ट क्या है? ये आपका ब्लड वेसल है, राइट। तो आप देखिए, और ये क्या है आपका पार्ट? ये आपका बाउमैन्स कैप्सूल है। क्या है बच्चों? इट इज योर बाउमैन्स कैप्सूल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये देखिए, इसका ये क्या है? इसका एक सिंगल लेयर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1% जनता क्वेश्चन। दिस इज अ डायरेक्ट एमसीक्यू। डायरेक्ट एमसीक्यू। ये सिंगल लेयर है,
सिंगल लेयर ऑफ ब्लड वेसल, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एंडोथीलियल लेयर, राइट। और ये ब्लड वेसल भी बहुत थिन है, ध्यान से सुनिए, ब्लड वेसल भी बहुत थिन है, बहुत छोटा ब्लड वेसल है, इसका भी सिंगल एंडोथीलियल लेयर है और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो एक है आपका एंडोथीलियल ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल, एंडोथीलियल ऑफ ब्लड वेसल, और दोनों के बीच में क्या है, यस, दोनों के बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो बाउमैन्स कैप्सूल आपका ब्लड को फिल्टर करेगा। बाउमैन्स कैप्सूल बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को फिल्टर नहीं होने देगा, डायरेक्ट एमसीक्यू। तो बच्चों जब तक, दिस इज अ डायरेक्ट एमसीक्यू, जब तक किडनी की डिजीज नहीं है, जब तक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं है, दिस इज अ डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जब तक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट मींस किडनी की डिजीज नहीं है, तब तक प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होंगे। प्रोटीन्स कब फिल्टर होंगे, प्रोटीन्स फिल्टर होंगे इन किडनी डिजीज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एब्सोल्युटली। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, सॉल्ट और शुगर पास हो जाते हैं एंड बाउमैन्स कैप्सूल क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करेगा, वाटर पास हो जाएगा, सॉल्ट पास हो जाएगा, शुगर पास हो जाएगा, बड़ा प्रोटीन पास नहीं होगा, सिर्फ इस बीमारी में पास होगा। बाउमैन्स कैप्सूल किसका बना है, एंडोथीलियम का बना है और ये इसका बाउमैन्स कैप्सूल है। बाउमैन्स कैप्सूल में सिंगल गैप है, ब्लड वेसल का भी सिंगल कवरिंग है, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर? All are direct MCQs from this particular topic. Moving ahead, this is very very important. देखिए बच्चों, ये ब्लड वेसल था। ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको नाम बताया हुआ है। ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल को हम कहते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं इसको बड़ा करके। ब्लड वेसल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल था, ये ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लड वेसल के ऊपर एक फुट लाइक प्रोसेस है। क्या है, फुट लाइक प्रोसेस। दैट मीन्स अगर ये ब्लड वेसल है तो इसके ऊपर ऐसे कुछ चिपका हुआ है, अगर ये ब्लड वेसल है इसके ऊपर ऐसे कुछ, देखो बच्चों मैं आपको बहुत प्यार से समझाती हूं, ध्यान से सुनना। यस, ये आपका ब्लड वेसल, दिख रहा है आपको ब्लड वेसल में गैप है, तो इसको मैंने ऐसे ढक दिया, देखो इसमें छोटा सा गैप आने दिया, बस मैंने गैप को कवर कर दिया। तो ब्लड वेसल के गैप्स होते हैं, राइट। लेट देखिए आपको, ये देखो ब्लड वेसल के गैप, देखिए देखिए ब्लड वेसल के गैप, देखिए इन गैप्स को मैंने इस फुट लाइक प्रोसेस से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया, फुट लाइक प्रोसेस। इस फुट लाइक प्रोसेस का नाम है पोडोसाइट। तो ये पोडोसाइट क्या ब्लड वेसल के गैप्स को क्लोज कर रहा है? यस। इसकी वजह से क्या फिल्ट्रेशन कम होगा, वरना सारा सामान फिल्टर हो जाएगा। हमारे घर में दरवाजे होते हैं जिनको हम बंद करके जाते हैं, दरवाजे आर द पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर दरवाजा खुला छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी चोर आएगा सामान लेके चला जाएगा। तो ये गैप्स हैं, दे आर लाइक डोर्स, वी नीड टू कवर देम। वी कवर देम विद पोडोसाइट्स, यस और नो, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, अदरवाइज सारा सामान बाहर निकल जाएगा, विच वी डू नॉट want. So podocytes are the foot-like processes which cover the endothelial gaps. Podocytes are the foot-like processes which cover the gaps called fenestrae, which are very important, my dear children. Why are they important? Because अगर fenestrae नहीं होगा तो filtration बहुत ज्यादा हो जाएगी, which we do not want. Is that clear? Podocytes का एक और नाम है, डायरेक्ट एम्स एमसीक्यू, विसरल एपिथेलियल सेल। विसरा का मतलब क्या होता है बच्चों, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन्स। तो ये किसी ऑर्गन का एपिथेलियल सेल है, किस ऑर्गन का, किडनीज का, राइट। ये बाउमैन्स कैप्सूल में होते हैं, दे रैप अराउंड कैपिलरीज, कैपिलरी के बीच में स्लिट्स होती हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे छेद रहने देते हैं और बड़े छेदों को कवर कर देते हैं। ये किसके काम आते हैं, रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, जीएफआर को रेगुलेट करते हैं। अगर मुझे जीएफआर कम करना है तो ये सारे होल्स को बंद कर देंगे, कैपिलरी के होल्स को, पर अगर मुझे थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन करना है तो ये थोड़े बहुत गैप्स को छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? तो गैप्स होते हैं एंडोथीलियम में, वो गैप्स फिल्ट्रेशन करवाते हैं, उन गैप्स को कवर करते हैं पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स रेगुलेट करते हैं कि कितना गैप रहेगा और कितना गैप नहीं रहेगा। क्योंकि अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और यूरिन बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो मुझे रेगुलेट करना है कितना गैप है, और वो कौन रेगुलेट करता है, पोडोसाइट्स। पोडो मतलब फीट, साइट मतलब सेल,
राइट। अब आप ऐसे मत बैठिए, आप ऐसे हो जाइए, क्योंकि हम आपको हर चीज पढ़ा रहे हैं। सो नंबर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनीज आर अ मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड प्रेशर। लेट मी टेल यू राइट अवे, ओके आई राइट फ्रॉम दिस साइड, लेट मी टेल यू राइट अवे, डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट अगली 5 स्लाइड, अगली 5 स्लाइड 500% क्वेश्चन, 5 स्लाइड्स 500% प्रॉमिस क्वेश्चन, राइट। तो एक अपैरेटस है जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो मैं आपको जूलॉजी के माइंड मैप्स में भी करवा चुकी हूं। आई विल डू इट इन डिटेल। तो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस? एबीसीडी ऑप्शन आ सकते हैं। ऑप्शन में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द juxtaglomerular apparatus? So you have juxtaglomerular cells, you have macula densa and you have extraglomerular mesangial cells. मैं इतनी बार erythropoietin बोल रही हूं जो आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करता है, mesangial cells. So ये 3 पार्ट्स हैं आपके juxtaglomerular apparatus के. Let's look at them in detail. The juxtaglomerular apparatus. मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहती हूं। ये रहा आपका बाउमेन्स कैप्सूल और इस बाउमेन्स कैप्सूल से पीसीटी डीसीटी ये ऐसे निकला, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। अब मैं कलर चेंज करना चाहती हूं। आपको ये एरिया दिख रहा है? यस। अब मैं दोबारा कलर चेंज करना चाह रही हूं। ये आ गया ब्लड वेसल, यस, और ये रहा ब्लड वेसल जा रहा है। तो बेटा अगर मैं ग्रीन कलर से ये बड़ा एरिया बनाऊं तो इस बड़े एरिया में, ये जो बड़ा एरिया मैंने बनाया है, क्या इस बड़े एरिया में मुझे देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब नजर आ रही है? यस, ये रही, ये रही। इस बड़े एरिया में बताइए, आप ही बताइए मुझे, इस बड़े एरिया में क्या ये इफरेंट ट्यूब्यूल निकलेगी? अगर मैं चलिए दोबारा बनाती हूं, जल्दी से हम करते हैं। यस, तो देखिए यहां पे बनाती हूं। ये रहा आपका बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है, और ये रहा आपका एफरेंट, ग्लोमेरुलाई, इफरेंट, और ये रहा आपका डीसीटी। तो देखिए अगर मैंने ये एरिया बनाया है, क्या इस एरिया में मुझे इफरेंट नजर आ रही है? यस। क्या इस एरिया में मुझे कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी नजर आ रही है? यस। तो इस एरिया में क्या मुझे इफरेंट से ब्लड का पता चल जाएगा कितना खून है? यस, यस। इफरेंट आर्टीरियल मुझे बताएगी कि कितना खून है, और क्या ये डीसीटी मुझे बताएगी कितना यूरिन है? तो बेटा क्या उस जगह पे, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्या उस जगह पे, बार बार लूप में सुनिएगा इसको, क्या उस जगह में मैं ब्लड और यूरिन के बीच में देख सकती हूं कि कितना ब्लड है बॉडी में और कितना यूरिन है? यस, एग्जैक्टली। बेटा अगर ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई, आप ही मुझे बताइए, बहुत गंभीर बात डिस्कस कर रही हूं मैं, बहुत डीप बात डिस्कस कर रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज। अगर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाए, हमारे शरीर में खून कम हो जाए, पर यूरिन निकलता जा रहा है, यूरिन सारा पानी शरीर का खत्म करता जा रहा है, ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई पर यूरिन निकल, इज इट गुड? नो। अगर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, बहुत खून है बॉडी में, वॉल्यूम बढ़ गई, ज्यादा वाटर है बॉडी में, यूरिन की वॉल्यूम पर कम है, यूरिन नहीं पास हो रहा, इज दैट गुड? नो। सो टेल मी, डू आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस? Do I have to maintain a balance between the blood volume and urine volume? Yes. तो क्या मुझे नापते रहना है कि कितना ब्लड है, कितना वॉल्यूम? अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ेगा, तो क्या मुझे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ने देना है बहुत ज्यादा? नहीं। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट गुड। और क्या ये ब्लड का वॉल्यूम वाटर से कंट्रोल होता है, क्योंकि 70% वाटर है ब्लड में? यस। तो क्या ये वाटर मैं यूरिन के इनपुट और आउटपुट से कंट्रोल कर सकती हूं? सो सिंपल। तो जेजी अपैरेटस के एक तरफ है ब्लड और जेजी अपैरेटस के दूसरी तरफ है, यस, यस, जेजी अपैरेटस के एक तरफ है ब्लड और जेजी अपैरेटस के एक और तरफ है यूरिन, और यहां पे बैठकर मैं ब्लड और यूरिन की वॉल्यूम्स को क्या कर रही हूं? कंट्रोल। दैट इज योर juxtaglomerular apparatus. Is that clear, my dear children? Are you understanding whatever I am doing? Yes? Is that clear? So my dear children, I am thinking
देखिए आगे क्या क्या है, मैं आपको आगे का पूरा बताती हूं। यस, तो जेजी अपैरेटस है, जेजी अपैरेटस को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को डिस्कस करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन पूरा डिस्कस करेंगे, मैक्युला डेंसा डिस्कस करेंगे, मेसेंजियल सेल्स डिस्कस करेंगे, पूरा आरएएस सिस्टम डिस्कस करेंगे, ऑस्मोलैरिटी, formation of urine again in detail, counter current multiplier in detail. Is that clear everybody? See so many slides on counter current multiplier. Electrolytes पे आएंगे, sodium potassium balance पे आएंगे, antidiuretic hormone पे आएंगे, acid base balance पे आएंगे. Is that clear? So बच्चों, because there's so much to do and I think it's already 1 hour that we have taken a class, I think I would like to end the session here. Yes, although मैं पढ़ाना चाहती हूँ, but I can understand that because आप छोटे बच्चे हैं, you might not have that large an attention span. So much we have to do in the next class. So I will end the session as of now today, and I will see you all in the next class whenever that is. So thank you everybody on behalf of Team Vedantu. I shall see you all in the next class. Make sure you attend it. Please leave behind your comments and your questions, and I will tell you when I will continue with this class in the next session. Yes, we are coming up with a lot of lectures on human physiology. Done? Yes, everybody. So I shall continue this session very, very soon. I'll see you all. Bye.